Okay, so anybody has any doubts in like yesterday's lecture? Because मैं आई थिंक कल थोड़ा ओवरवेलमिंग हुआ रहेगा. राउटिंग में बहुत सारे चीजें हम लोगों ने की है. ओके, बट स्टिल अगर कोई किसी को डाउट्स है तो यू कैन आस्क और आई जस्ट गेट अ रिवीजन. हम लोगों ने क्या कल क्या क्या किया एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं. एंड उसमें से एक टॉपिक बचा था जो हम लोग आज कवर कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फॉर्म्स. So I'll start my application first. So it is npm run start server. सर्वर अभी हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा. बैकएंड सर्वर एंड देन npm start. Okay. Local host 4200. ठीक है. So yesterday we have implemented routing. So in that, when you want to implement a routing, so what you do first is we go to app module and import router module first. Okay. Then we specify routes for each and every component that we want to display on each and every path. Okay. So we have created routes and here we have defined our route. So for every path, we are displaying one component. Okay. We have also added title property just to display the title property on your tab. Okay. So for home products, we have defined path and components. Then also we have created profile page. Profile also we are showing profile component. Then once the routes are created, you can pass those routes to your router module so that Angular can um, know basically which path will display which component. So we'll pass those routes to your router module by using for root method. This for root method is only applicable on the root module. Rest all modules will basically use for child. Okay, we'll see this in like in our modules section where we will see the lazy loading and all. So in that section we will see what is for child and how to use it. Okay. So this is how you can specify routes. But once you have specified the routes, then where the Angular will show those components. Okay, where if I go to this path, where the Angular will show it. So for that, in the map component.html, we have added router outlet. So this is the outlet or place where your component will be displayed when you visit that page, okay, or that path. So the router outlet is the one thing, but to implement single page application, we need to add links as well because no one will basically go to your browser address bar and enter the URL. Okay, so we have added links here. Now we can add links using router link. We don't need to use href because if you use href, it won't be a single page application. It's like you are clicking on that link and your entire page is getting refreshed. Okay, we don't want to implement that. We want to implement single page application. So we have added router link. So when you add a router link, Angular will basically intercept your default behavior of route. It manipulates your location object and it changes your URL. And then on the router outlet, it displays that component, adds, removes, whatever. Okay, so all this stuff is basically handled by router module. Okay, here we specify the route path in our array, and then we also specified router link active. So we can specify the active class based on the active path that we are into. Okay, so this is app component and app module. We have also added paths for blank path. If anyone tries to go to directly into domain, we can redirect it to some other page or other path. So we have used redirect to. Then for any other path which is not matching, for that we have used page not found. So this is wildcard route. Okay, and wildcard route should be at the end of all the routes. Okay. So these are routes we have specified. Then we went to our profile component and there we have implemented query params. So like if you enter question mark and add query parameters, then how do you get those query parameters using route.query params? This route is nothing but your activated route. So whatever whichever route is active route now, so that information that you will get it from activate route surveys. Okay, so you can subscribe to this query params and then you will be able to get all the parameters. Then this is the profile component. Then we have implemented dynamic routes.
using product slash colon id. Colon id basically specifies the dynamic parameter or the placeholder. This placeholder will be replaced by the number or any value. Okay. So for that we have implemented product detail component. In product detail component, we got the value using snapshot. But snapshot was like it will give you only value when you are coming to that page first time. Okay. But if you are just navigating to that page only, but with URLs, like the changing the IDs, like this Samsung, and if I go to next, previous, your URL is going to remain same. That means your component is going to remain same. So Angular is smart enough to, it will not destroy your component because your component is already there. So it will not destroy it. It will just keep it as it is, but you want to get all those parameters. So you can use param map observable and subscribe to it, and you can get the ID from it. And then based on that, we can get product by ID. Okay, we have implemented this service, this API. Then go next, go previous, these two methods, go back. This basically, if you want to manually navigate to any page, we can use this dot router dot, this is router service we can use. Okay, this router service. And using this router service, we can navigate to any page. So this we have implemented, and yeah, so this is what we have done yesterday. One more thing, if you want to prevent anyone to go to any page based on some logic, then we can implement guards. Okay, so this is a guard which basically tells us that if you enter invalid ID in your URL, so it will just prevent you to go from that page, go into that page. So for that, we have implemented a guard here, product ID validation guard, which is can activate guard. Can activate means the route should be activated or not. Okay. If we return false, then that route will not be activated. If we return true, then that route will be activated. That means that route will be shown. We have can deactivate also. If you want to come out of your route page, then you can use can deactivate. So for this, we have used can activate, and we have checked whether the ID is valid or not. If it is not a number, then we are displaying an alert, navigating it to products page, and then returning false. If it is proper number, then we are returning true, so that you can go to that page. Okay. And this guard, we only wanted to want it for product detail page. That's the reason we went to app module, and here we have added can activate guard. Okay, so the rest we don't want this can activate guard for all the paths. We only want it for product detail component. Okay, so using these guards, we can prevent unauthorized access or any prevent going to any page. Okay, now the last thing that was remaining in routing is your nested routes. Okay, so what if you now currently if you see this entire page which is displaying is in a router outlet. Okay, now what if I want to display something inside this page? Okay, so inside this inside this router outlet, this outer one is the router outlet. Okay, or you can say product detail component, and in this product detail component I want to display one more route. Okay, we can have it because sometimes you may have tabs here, and based on the tabs we click on the tab, then another page will load. The URL may also change. Okay, so that kind of stuff can happen. So we want to implement nested routes. Okay, so how do you implement nested routes? To implement nested routes, we first need to understand we in which page or in which component we want to implement nested route. Okay, so what we will do is we will add two tabs here. One is for specification and another is for reviews. Okay, so when I click on specifications, it will show specifications page. If you click on reviews button, so it will show reviews page. Okay, and accordingly my URL will also change. So when I click on specifications, it will become product slash two slash specifications. If I click on reviews, then it will become product slash two slash reviews. Okay, that means the base URL will remain same, only the further part specifications reviews will change. Okay, so this component we are going to implement inside a product detail component. Okay, so that means the these two routes are basically children of this product detail component. That means child of this product slash two component. Okay,
So in that case, you can implement children for this. You can add comma children. Okay. And children, we can specify many components or many paths here. Okay. This also accepts the same route, which is path and component. We'll do that, but before that, we need those two components. So we'll add those two components. NGGC specifications, and then one more for reviews. Even if I don't add hyphen m app module, it will be added in app module itself because you only have one single module for now. Okay. When you have multiple modules, then in that case, you need to specify the module. Sometimes it will pick it up from your current folder itself. Okay. That time also you don't need to specify. So I got my reviews component, specifications component. Okay. But I want to specify routes for them. So let's add routes here. So first path, let's say it is specifications. Remember, we don't specify uh, preceding slash, and then after that component. Component, I want to display specifications component. Okay, this is for specifications. Similarly, we can create it for reviews. Here I will say reviews component. So this will display reviews component. This will display specifications component. Okay, but this path where it will be loaded. Where do you want this to be loaded? Okay, when I say specification, if I go to product slash id, my product detail is shown. But when I go to product slash id slash specifications, my specifications component will be shown. But that will be shown inside your product detail page. That means this is a children route, right? So this will also require router outlet because this can't be displayed in outer outlet. Here we have a router outlet. So here router outlet we have it is in like a parent. So we cannot display router your specifications component in parent router outlet because if you display that in the parent router outlet, it will override your this entire page, whatever you are displaying here. Okay, and Samsung Galaxy S22 Ultra, previous, next, go back button, all will go away. Okay, we don't want to do that because we are implementing it as children. Okay, now even if you go to this, you will not see these pages, the specifications. If I say, you will not see anything here. Okay, because there is no router outlet for this because they are children. If you are adding children to any component, that means you have to add outlet in that component. Okay, go to the product detail component and it's HTML, add router outlet here. Okay, you can add router outlet here. Okay, so every product will have its own specifications and its component. Okay, so you may get it from your product detail page itself. So here, if you want to add it, you can add it inside this because if only product if I have a product, then only I can show specifications and reviews. If I don't have a product, I cannot show it. Okay, so that's the reason I'm adding it inside this div. Okay, let's go to get bootstrap and take some help for CSS. I'll use navs and tabs. Okay. Yeah, this looks good, so I'll use this one. Copy tabs one, paste. Okay, so this tabs, I only have two tabs, so I don't need this extra LIs. Only two are there. Okay, here also we have active class, so we can use this active class using router navigate router link active. But for that, before that, we will use let's say specifications here and reviews. Okay, so first tab will be specifications and next tab will be reviews. So if I refresh, you will see these two tabs. Okay, now if I click on reviews, so you can see it is actually taking me to other place because we have a href here. You want to replace this href with your router link. Sir, your router link, you need to specify the uh, path. Okay, so the path is slash products. Okay, comma product dot id, comma your specifications. Okay,
And also for this one, I'll add it in the next line. For reviews, product slash id slash reviews. Okay, so this is the reviews path, this is the specifications path. Okay, if I go and go to your any of this product, let's say Samsung, so you will see specifications, but if I click on reviews, okay, I cannot see anything here. Okay, nothing is displayed, but because there is no outlet, I haven't added outlet yet. Okay, so where can I add outlet? You can add outlet below this UL. Okay, it doesn't matter wherever, because these are just tabs. Below these tabs I want to display the content. So let's add outlet here, router colon comma hyphen outlet, router outlet. Let's refresh. Now you can see review works. Now you can see reviews works because you are on reviews page. If I click on specifications, you can see the URL is changing and I am getting specification works here. If I click on reviews, you will see reviews is here and the component is loaded is reviews. This is the outer router outlet, parent router outlet, which is basically displaying your product detail page. And this is a child router outlet, which is displaying the child routes, specifications and reviews. But as you can see, I am not basically able to see the current active this. So for that, you can use router link active, router link active. Okay, specify your active class here, copy, paste. I'll remove this active class. Okay, save it, refresh. Now you can see reviews is the page. I'm seeing reviews is the active tag. Go to specifications. You can see that this is active. Your route is also specifications, and the component shown is also specifications. Okay, so that's how you can implement routing for children, child routes. Okay, but if I go to back and if I come to this page, let's say again I'm going to this page, you will see that nothing is displayed here because there is no default route. By default, we are showing product slash 2 and product slash 2 doesn't have any route here. Now in your app module, in the children, product slash ID will only display product detail component. After that, we don't have any blank path here. Like we have a blank path here, we don't have a blank path here, right? So because of that, you are not seeing anything here, and also the active routes are also not there. But if you click on specification, you will see specification. If you click on reviews, you will see reviews, because accordingly we are changing the routes as well. So for blank path, we can have a redirection. By default, at least one tab can be shown, right? The specifications or reviews, any tab I can show it. Okay, so here my route will be same, like product slash id slash 2. I don't need to change it here. Okay, what I will do is I will add one more path here. Okay, path colon, okay, blank path. If I have a blank path, I will redirect to, okay, slash product slash colon id slash specifications. Redirect to specifications, and then I will say path match full. Okay, let's go and check. I'll click on this. Okay, there is an error. Yeah, I guess it should only write specifications slash specifications, because we already have product slash id here. uh no, redirect to slash product slash, okay, let's say specification only. Fish. Just specify specification, don't specify slash here. Okay, because we are specifying path match full, right? When we specify path match full, that means the full path is matched. Okay, and then you are specifying specification here. So here the specification, just specify specifications, that means it will directly go to the specifications component. Okay, so now you can see that I don't have to change path here. This path remains same. Okay, the product list, you can see it is the same path, which is actually
redirecting to product slash id. But in the router children, we are specifying the route for blank path. If after product slash id, if there is a blank path, we are redirecting it to specifications page. That means this page will be displayed. So by default, if I go to blank, the specifications tab will open. Along with that, we are also seeing the product detail component related thing. So that is happening. But we will also load one more component that is in next. You can see it is redirecting specification. Now my specifications tab is shown default as a default. Okay. So this is how you can implement nested routing or child routing. Understood, everyone? So just one doubt. Yes. Specification module will fall under which module? App module or product detail module? For now, consider it is an app module. uh, After the forms lecture, we are going to learn about the module section. So in that section, we will be separating this all of this components in separate module. In that lecture, I will tell you how to define every module level routing as well. So in that case, when I create a product module, then we will move this children routes and product related routes into that module. Okay, and we will link all of those routes. Okay, for now, just consider that this is a app module, part of app module. Later on, we will change it. Okay, okay. Yes, Vatsal? Yes, yes, okay. Okay. समझा सब लोग को? किसी को कोई डाउट? नहीं तो फिर ठीक है, कर लो ये. Just have to change two things. One is add children here. Basically, first add these two components. Okay, generate these two components and then add these children, and go to product detail component and add this stuff. This router outlet.
स्क्रीन दिख रहा है? Yes. ओके, लाइट गया है मेरे पास, so, ठीक है। हो गया सबका? नहीं सर। हाँ ठीक। Done. Then okay. What about others? Shreyas, Pranati, Rishikesh, Sonali, Ravi. Hmm. चलो। हो, ठीक है, चलो। ग्रेट। नाउ लेट्स ना यहाँ पे हमारा बेसिकली राउटिंग रिलेटेड सब खत्म हो रहा है। ओके, लाइक देर इज वन मोर टॉपिक रिमेनिंग विच इज नथिंग बट लेजी लोडिंग। बट लेजी लोडिंग के लिए हम लोग को पहले तो मॉड्यूल्स समझना पड़ेगा। ओके, और मल्टीपल मॉड्यूल्स लगेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट लेजी लोडिंग। ओके, लेजी लोडिंग क्या होता है क्या नहीं होता तो हम लोग देख लेंगे। ओके, दैट्स इन मॉड्यूल सेक्शन। ओके, बट फॉर नाउ योर राउटिंग सेक्शन इज डन। बहुत कुछ कवर कर लिया मैं राउटिंग में। ओके, now let's see the next topic, which is form handling. Okay, now how do you handle forms in Angular? फॉर्म एंगुलर में फॉर्म हैंडल करना इज अ लाइक डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू योर फॉर्म्स जो हम लोग हैंडल करते हैं। ओके, फॉर्म्स हम लोग सेम ही तरीके से बनाते हैं, बट यहाँ पे फॉर्म्स हैंडल करने के लिए वी हैव सम फॉर्म रिलेटेड क्लासेस फंक्शंस, वो हम लोग को यूज करने पड़ेंगे एंड देन यू कैन मैनेज योर। ओके, बट जो फॉर्म हैंडलिंग एंगुलर में है ना, बहुत like you can say बहुत powerful चीज है। because of this you can implement like highly complex forms as well in Angular. Okay, so let's see what is Angular forms and how to implement it. So if I go to angular.io, okay, in the documentation itself you will see best practices में जाके, नहीं बेस्ट नहीं अपना, sorry, developer guides में जाके you can see the forms, and in the introduction
यू विल सी फॉर्म्स थिंग्स। ओके, सो बेसिकली फॉर्म हम लोग को एंगुलर में सेपरेटली क्यों हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज इफ यू सी जब हम लोग फॉर्म्स वगैरह नॉर्मल रेगुलर HTML जावास्क्रिप्ट से करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, एंड सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म रिफ्रेश होता है। ओके, सो यही चीज हम लोग को सिंगल पेज एप्लीकेशन में नहीं चाहिए होती, राइट। व्हेन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन योर फॉर्म इज गेटिंग रिफ्रेश, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो रूल है उसको वायलेट कर रहा है। ओके, सो इसके लिए फिर एंगुलर क्या करता है कि बेसिकली सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग उसका डिफॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये हम लोग जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। ओके, बट एंगुलर ये इंटरनली ही कर लेता है। और बट फॉर्म कैसे सबमिट करोगे फिर, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए जो भी डेटा हम लोग ने सबमिट किया है फॉर्म में, ओके, फिर जो भी फिलअप करता है सबमिट करने के बाद वही डेटा हम लोग को एंगुलर एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट या किसी फॉर्मेट में दे देता है, और फिर वो ऑब्जेक्ट लेके हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं, एंड थ्रू एपीआई वी कैन सबमिट द डेटा टू द सर्वर। ओके, so let's see what are how you can create forms in Angular. Now, Angular provides two different approaches to handling user input forms. Okay, through forms. That is a reactive based approach and template driven approach. Okay, so there are two ways you can create form in Angular using template driven approach and reactive approach. Okay, so what is this approach and when can we use each type of approach? सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन देम। देन हम लोग आज तो हम लोग सिर्फ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म पे फोकस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फोकस ऑन रिएक्टिव फॉर्म्स। ओके, एंड वी विल सी हाउ रिएक्टिव फॉर्म्स आर मोर पावरफुल देन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। ओके, सो हियर दे यहाँ पे इस गाइड में ना यू विल फाइंड लाइक कौन सा यूज करना चाहिए, क्या कौन सा क्या डिफरेंस है, आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। ओके, जैसे मैंने कुछ सेपरेटली कुछ नहीं बता रहा हूँ, एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन में ही पूरा आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, so you can see the choosing an approach, which approach should be chosen based on the scenarios. अब अगर देखोगे रिएक्टिव फॉर्म्स में उन्होंने लिखा है प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सप्लिसिट एक्सेस टू द अंडरलाइंग फॉर्म्स ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, मतलब ये डायरेक्ट आपको कोर लेवल का एक्सेस दे रहा है, डायरेक्टली फॉर्म का ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे रहा है। ओके, compared to the template driven forms, they are more robust, they are more scalable, reusable and testable. Why? Because ये आपको डायरेक्टली कोर लेवल का एक्सेस दे रहा है, कोर फंक्शन या फिर जो कोर क्लासेस है उनका एक्सेस दे रहा है। सो यूजिंग दोस क्लासेस you can customize your forms, you can customize your own things. Okay, and आप scalable applications, scalable components भी बना सकते हो, reusable components बना सकते हो using forms. Okay, and testing भी easy हो जाता है reactive forms, बिकॉज हम लोग जो रिएक्टिव फॉर्म्स में जो फॉर्म्स बनाते हैं वो पूरा हम लोग हैंडल करते हैं थ्रू टाइप स्क्रिप्ट कोड। तो जावास्क्रिप्ट के कोड से ही हम लोग पूरा हैंडल करेंगे फॉर्म्स। ओके, whereas template driven form में देखोगे यहाँ पे और भी है लाइक if forms are key part of your application or you are already using reactive patterns for building your application, use reactive forms। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके एप्लीकेशन का की पार्ट अगर फॉर्म्स है, ओके, तो यूज रिएक्टिव फॉर्म्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल आल्सो से कि अगर आपके एप्लीकेशन में अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स है, बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स है, ओके, और किसी फॉर्म्स में डिपेंडेंसी होता है एक इनपुट एलिमेंट का दूसरे इनपुट एलिमेंट पे, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ जाता है देन इन दैट केस प्रीफर रिएक्टिव फॉर्म्स। ओके, बिकॉज ये आपको भले ही रिएक्टिव फॉर्म्स में आपको थोड़ा सा कोड ज्यादा लिखना होता है, बट अप्रोच आपको यही अच्छा लगेगा जब आपके फॉर्म्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एंड बहुत बड़े हो जाएंगे। ओके, so use reactive forms if your application consists of lot of forms. Okay, and you are also already using reactive pattern, मतलब RxJS वगैरह use कर रहे हो, तो it's better to use reactive forms. Okay, template driven forms, they rely on directives in the template to create and manipulate in the underlying object model. तो बेसिकली ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के नाम में ही लिखा है टेम्पलेट ड्रिवन, मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है ये टेम्पलेट में ही क्रिएट होता है। ओके, और टेम्पलेट से ही हम लोग फॉर्म मैनेज करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट से कोई भी फॉर्म का एलिमेंट या फॉर्म का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते किसी एलिमेंट का। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो टेम्पलेट में ही क्रिएट होता है, और वो डायरेक्टिव से हम लोग मैनेज करते हैं। डायरेक्टिव में आपको एट्रीब्यूट्स जो एंगुलर ने प्रोवाइड किए, ठीक, उसी से हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, दे आर यूजफुल फॉर एडिंग अ सिंपल फॉर्म टू एन ऐप such as an email list sign up form, okay,
या फिर अगर आपका सिंपल से सिंपल लॉगिन फॉर्म भी है तो भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। अगर आपके पास कॉन्टेक्ट अस पेज है तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दो फॉर्म्स है और एकदम सिंपल फॉर्म्स है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, टेम्पलेट ड्रिवन उल्टा ज्यादा प्रेफरेबल होगा, बिकॉज उसमें ज्यादा कुछ कोड नहीं करना होता। जिस टेम्पलेट में फॉर्म के एलिमेंट्स वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो एंड आपका फॉर्म बन जाता है। हाँ, बट अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है तो एक्चुअली टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा, और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा, बिकॉज लॉजिक भी हैंडल हम लोग को टेम्पलेट में ही करना पड़ेगा। ओके, फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी भी टेम्पलेट में ही हैंडल करो। सो टेम्पलेट जहाँ पे HTML भी है, लॉजिक जावास्क्रिप्ट कोड भी वहीं पे आ जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और वो बहुत क्लटर हो जाएगा, राइट। सो बेटर है keep your form logic and control separately in a TypeScript file, और टेम्पलेट को अपना टेम्पलेट का ही काम करने दो, HTML को अपना HTML का ही काम करने दो। फॉर्म एलिमेंट्स बनाओ, उसको हैंडल करो, बाकी पूरा लॉजिक जो है वो पूरा टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर छोड़ दो। ओके, सो दैट इट विल बी सेपरेशन ऑफ कंसर्न आपका मेंटेन रहेगा इन केस ऑफ रिएक्टिव फॉर्म्स। ओके, सो इसीलिए ये लोग वही बोल रहे हैं कि लाइक अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर्म का तो यूज टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्रिवन है, कॉम्प्लेक्स है, यूज रिएक्टिव फॉर्म। ओके, so here the differences are clear, like there are some also key differences like setup, फॉर्म का सेटअप कैसे होता है। रिएक्टिव फॉर्म में इट्स एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या, कि कंपोनेंट क्लास में क्रिएट होता है वो रिएक्टिव कंपोनेंट के क्लास में क्रिएट होता है। while as in template driven it is implicit, that means वो डायरेक्टिव्स के थ्रू टेम्पलेट के अंदर ही फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ओके, डेटा मॉडल, रिएक्टिव फॉर्म्स में डेटा मॉडल स्ट्रक्चर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मींस द वैल्यू बेसिकली जो आपको मिलेगा हर बार नया ही मिलेगा, नया रेफरेंस ही मिलेगा उसका। ओके, आपको सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट मैंने एक इनपुट एलिमेंट को असाइन कर दिया, तो वो ऑब्जेक्ट जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसी ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। दैट मीन्स वो आपका वेरिएबल जो होता है म्यूटेबल है, वो उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है व्हेन यू हैव अ म्यूटेबल कंट्रोल्स। ओके, इम्यूटेबल में आपको हमेशा आप ये कर सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा नया ही है और चेंज हुआ हुआ नया ही वैल्यू मिलेगा, आप प्रीवियस इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो इम्यूटेबल होता है रिएक्टिव फॉर्म्स में, एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स में अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली टेम्पलेट में आप जाके कर रहे हो, फॉर्म्स बना रहे हो, तो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओके, बट हाँ आप उसको एक क्लास प्रोवाइड करके उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना सकते हो। ओके, बट अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा नहीं देगा आपको। ओके, जो क्लास में जैसे आपके फील्ड्स है उसी हिसाब से मिलेंगे। एंड इट इज इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ओके, द डेटा फ्लो इज सिंक्रोनस एंड टेम्पलेट ड्रिवन में असिंक्रोनस है। सो डेटा जो फ्लो होता है लाइक टाइपस्क्रिप्ट टू HTML, फिर HTML टू टाइपस्क्रिप्ट, और वो फॉर्म कंट्रोल के थ्रू जो फ्लो होगा, तो यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स में वो सिंक्रोनस होगा। तो आपका एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप बेसिकली देख सकते हो कि आपका वैल्यू जो है कहीं पे मिसमैच नहीं होगा। ओके, सो रिएक्टिव फॉर्म्स वही, इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में आपको रिएक्टिव फॉर्म ज्यादा प्रेफरेबल होंगे। टेम्पलेट रिवांस में सब असिंक्रोनस फ्लो होता है। ओके, वो डेटा फ्लो का जो है ना नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया डेटा फ्लो इन फॉर्म्स, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। इतना डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो। फॉर्म वैलिडेशन, रिएक्टिव फॉर्म्स में सिर्फ फंक्शन से आपका फॉर्म वैलिडेशन हो जाएगा, बट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए आपको डायरेक्टिव क्रिएट करना पड़ेगा। जो डायरेक्टिव के लिए आपको जो फंक्शन लिखा है ना वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स इसमें एक्स्ट्रा ओवरहेड है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में। ओके, डायरेक्टिव बनाओ, वो डायरेक्टिव में सेम फंक्शन यूज करो, रादर रिएक्टिव फॉर्म में जो फंक्शन बना हुआ है डायरेक्टली यूज करो। ओके, सो रिएक्टिव फॉर्म्स में वैलिडेटर बनाना इजी हो जाता है। ओके, we'll see how to create validators and use them in reactive forms. Okay, so बाकी सब स्केलेबिलिटी, सेटिंग अप फॉर्म मॉडल, ओके, वो सब चीजें आएंगी ना जब फॉर्म आप क्रिएट करते हो। ओके, बोथ अप्रोच लाइक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म हो या आपका रिएक्टिव फॉर्म है, ओके, both the approaches uses these four classes. These are the four base classes which are used in both the approaches: form control, form group, form array, and control value accessor. Okay, तो फॉर्म कंट्रोल ये जो चार क्लासेस है ना, इनका डायरेक्ट एक्सेस मिलता है आपको रिएक्टिव फॉर्म्स में। ओके, ये कोर क्लासेस है, बेस क्लासेस। ओके, वेरएस अगर आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जाओगे तो ये क्लास, इसमें से कोई भी क्लास आप यूज नहीं करोगे, बट जब डायरेक्टिव यूज करोगे ना तो डायरेक्टिव अंडरलाइन यही क्लासेस यूज करता है। ओके,
सो इट्स लाइक टेम्पलेट ड्रिवन इज लाइक यू कैन से हायर लेवल लैंग्वेज, जैसे बोलते तो हायर लेवल लैंग्वेज है, और रिएक्टिव फॉर्म्स आपका लोअर लेवल लैंग्वेज है। ओके, तो आपको लोअर लेवल पे देता है, जैसे आप सी सी प्लस पर बोलते हो कि एकदम मशीन लेवल तक आपको एक्सेस दे देगा। जावा या वो आपके थोड़े हायर लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो आप जो आपको अगर फास्ट परफॉर्मेंट कुछ चाहिए तो आपको डायरेक्ट मशीन लेवल के एक्सेस के साथ लैंग्वेज के साथ काम करो। इसीलिए आप देख सकते हैं गेमिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट सी सी प्लस प्लस पे काम करती है। वैसे ही जावा एप्लीकेशन, हायर लेवल एप्लीकेशन में आप जावा या किसी और लैंग्वेज से कर सकते हैं। सो यही यहाँ पे कंसेप्ट है। सो रिएक्टिव फॉर्म्स आपको एकदम डायरेक्ट कोर लेवल का, लो लेवल का एक्सेस देता है, तो आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, परफॉर्मेंट बना सकते हैं। वैसे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आपको सिर्फ ऊपर ऊपर के फॉर्म्स बनाने तो यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द फोर क्लासेस। बता देता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल क्या होता है। फॉर्म कंट्रोल ये बेसिकली इट ट्रैक्स द वैल्यू एंड वैलिडेशन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल मतलब आपका जो फॉर्म का इनपुट एलिमेंट डालते हो ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट या फिर सिलेक्ट टैग या फिर आपका सबमिट बटन वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब जो है ना, इनको हम लोग फॉर्म इनपुट कंट्रोल्स बोलते हैं। ओके, और इनको बाइंड करने के लिए वी हैव अ फॉर्म कंट्रोल क्लास। तो इनके ऊपर नजर रखने के लिए यू कैन से कि फॉर्म कंट्रोल क्लास है। तो इनके ऊपर जो वैल्यू आता है, इन पे जो वैलिडेशन लगता है, ये फॉर्म कंट्रोल क्लास का जिम्मेदारी। ओके, वी हैव अ सेकंड इज फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप इज नथिंग बट आपका कलेक्शन ऑफ फॉर्म कंट्रोल। जैसे आपका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स है, इन सब का मिला के आप एक फॉर्म बनाते हो। तो फॉर्म ग्रुप बेसिकली ये जो सब आपके फॉर्म कंट्रोल्स है, इन सब का कलेक्शन इज नथिंग बट अ फॉर्म ग्रुप। तो ये फॉर्म ग्रुप क्या करता है, इन सब का वैल्यूज और उनका वैलिडेशन स्टेटस सब मेंटेन करता है। ओके, तो मतलब अगर सपोज मेरे पास 4 इनपुट कंट्रोल्स है और चारों का मिला के एक फॉर्म ग्रुप है, तो अगर चारों में से एक भी इनवैलिड है तो आपका एंटायर फॉर्म ग्रुप इनवैलिड है। चारों भी वैलिड है तो एंटायर फॉर्म ग्रुप वैलिड है। तो ये चारों का मिला के आपका फॉर्म ग्रुप होता है। ओके, you will see lot of all of this in reactive forms. Okay, then we'll have form array. Form array means like एक ही कंट्रोल के मल्टीपल कंट्रोल्स। ओके, मतलब आपका सपोज इट्स लाइक ए डुप्लीकेट्स, मतलब आपका एक ही कंट्रोल है। जैसे कि आपके फॉर्म में सपोज आपका मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आप आपके पास दो हो सकते हैं, 3 मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो इनपुट कंट्रोल एक ही होगा, बट आपके सपोज 2 या 3 बार आप यूज करोगे, तो दैट्स एरे ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। ओके, तो यहाँ पे ये एरे मेंटेन करता है एक ही फॉर्म कंट्रोल का। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही फॉर्म कंट्रोल का एरे हो, इट कैन हैव एरे ऑफ फॉर्म ग्रुप्स एज वेल। फॉर्म ग्रुप मतलब क्या कि फॉर्म ग्रुप एकदम फॉर्म को ही नहीं बोलते। आप अगर आपका सपोज एड्रेस है, एड्रेस एक एंटायर फॉर्म ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका सिटी, जिप कोड, कंट्री, ये सारे फील्ड्स आते हैं। तो इन सबको एक एड्रेस आप फॉर्म ग्रुप बोल सकते हो। अभी यही फॉर्म ग्रुप के आप मल्टीपल ये भी बना सकते हो, एरेस। जैसे आपका होता है ना बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, दोनों में कंट्रोल सेम ही होते हैं, सिर्फ एड्रेस अलग अलग होते हैं, वैल्यूज अलग होते हैं। सो यू कैन हैव एरे ऑफ फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप्स एज वेल। तो ये आपका फॉर्म एरे होता है। लास्ट, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। इट्स बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन योर एंगुलर फॉर्म कंट्रोल क्लास एंड योर बिल्ट इन डॉम एलिमेंट्स। मतलब आपके जो इनपुट एलिमेंट्स है, इनपुट सिलेक्ट, ये और आपका फॉर्म कंट्रोल क्लास, इन दोनों का ब्रिज है, इन दोनों का दोनों के बीच में का एक्सेसर है। तो जब भी इनपुट से वैल्यू आप डालते हो, तो फॉर्म कंट्रोल को भेजने का काम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर करेगा। फॉर्म कंट्रोल में जब वैल्यू चेंज होगा तो उससे इनपुट में डालने के लिए फॉर कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। तो दिस इज अ ब्रिज बिटवीन देम। ओके, से ये हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते फॉर्म कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, बट ये ऊपर के जो 3 क्लासेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को ज्यादा यूज करना है। ओके, सो विल सी एंड वी विल क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग दिस 3 क्लासेस, बट दैट विल बी इन रिएक्टिव फॉर्म्स, बिकॉज रिएक्टिव फॉर्म आपको ये लेवल का एक्सेस देगा। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आप ये करोगे, बट ये सब अंडरलाइन होता है। ओके, सो आपको डायरेक्टिव से ही काम चलाना है। सो दिस इज हाउ योर सेटअप ऑफ फॉर्म्स आर, एंड ये बाकी सब उन्होंने एग्जांपल वगैरह दिया। ओके, सो दैट्स ऑल रिलेटेड टू फॉर्म्स। कि तो ये समझा है रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली। ओके, ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू आवर फॉर्म्स। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट इज नथिंग बट योर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। ओके, अभी हम लोग के पास, अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर्म्स लगेंगे, एक तो टेम्पलेट ड्रिवन के लिए और रिएक्टिव फॉर्म के लिए। तो मैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है ना, हम लोगों ने अभी जस्ट एक रिव्यूज कंपोनेंट बनाया है, तो उसमें हम लोग रिव्यू के लिए एक फॉर्म बना लेते हैं, और वो हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन बनाएंगे बिकॉज वो छोटा सा फॉर्म है।
एंड ये प्रोफाइल वाला जो है इसको हम लोग रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे, इसमें हम लोग कंट्रोल्स वगैरह ज्यादा ऐड कर सकते हैं। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस रिव्यूज कंपोनेंट। ओके, नाउ रिव्यूज कंपोनेंट में हम लोग को क्या क्या चीजें चाहिए। नाउ अगर आपको एक रिव्यू डालना है तो आप क्या क्या डालोगे। तो रिव्यू डालने के लिए लेट्स से हम लोग को उसका कौन रिव्यू डाल रहा है, वो ऑथर का नाम, उसका रिव्यूज का डिस्क्रिप्शन, क्या रिव्यू डाल रहा है, रेटिंग, ओके कि 1 to 5 में क्या रेटिंग देगा, एंड लेट्स से ईमेल आईडी। सो हम लोग लेट्स से कि 4 फील्ड लेते हैं, एक ऑथर नेम, ऑथर ईमेल आईडी, ऑथर का वो रिव्यू का डिस्क्रिप्शन एंड रेटिंग, ये 4 फील्ड लेके हम लोग एक रिव्यू फॉर्म बना लेते हैं। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला ना कि हम लोगों ने देखा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर अनस्ट्रक्चर, राइट। अनस्ट्रक्चर होने की वजह से उनका स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता। सो इसके लिए हम लोग को कोई क्लास बनाना पड़ेगा जो स्ट्रक्चर्ड होगा और वो क्लास यूज कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, रिव्यू के लिए एक मॉडल यूज करते हैं। ओके, जो मॉडल हम लोग यूज कर सकेंगे रिव्यू फॉर्म में। ओके, जैसे हमारा प्रोडक्ट मॉडल था, राइट, प्रोडक्ट इंटरफेस, वैसे हम लोग रिव्यू का इंटरफेस भी बना सकते हैं जो हम लोग यहाँ पे रिव्यू को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, so let's go and create a review model first. So I'll create a file review.ts. Okay, and इसमें I'll write export interface, okay, review. Okay. Now इसमें जैसे हम लोगों ने बोला like author field होगा, it will be of type string. Then we'll have email which is of type string. Then we'll have a rating which is of type number. Okay, then we'll have description which is again of type string. Okay. So this is our review model, you can say. Now let's come to our, ये इन सब की तो जरूरत नहीं, I'll just close them. Okay, keep this one and let's go to your review component and come here, review component class file. Okay, so for this review class interface, okay, I'm not going to create an interface. Okay, interface के लिए हम लोग उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। okay, so हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो यहाँ पे आके मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा और वो उसका वैल्यूज जो है यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा। ओके, सो इसके लिए मैं इसको क्लास बना देता हूँ इंस्टेड ऑफ रिव्यू इंटरफेस। ओके, बट जैसे क्लास बना दोगे आपको सबके लिए वैल्यूज कुछ ना कुछ देने पड़ेंगे। ओके, so what I will do is I will make them as exclamation, null वगैरह भी चल जाएगा, undefined वगैरह। okay, so your description will have string but by default null होंगे values। okay, so let's come back here and create an object of review form। okay, so यहाँ पे I'll create a variable review form which is of type review। okay, review model का होगा null एंड नल छोड़ दो, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, रिव्यू फॉर्म इक्वल्स टू न्यू रिव्यू फॉर्म रिव्यू लेट्स से। तो ये हमारा रिव्यू फॉर्म का ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग हम लोग को क्या करना है कि हमारा फॉर्म क्रिएट करना है यहाँ पे। ओके, सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म लेता हूँ और वही यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ। सो लेट्स गो टू फॉर्म्स हियर एंड यही कॉपी कर लेते हैं, सेम फॉर्म है यहाँ पे, पेस्ट, सॉरी। ओके, अभी यहाँ पे आके लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ा टैग डालता है h3 रिव्यू फॉर्म, ठीक है। एंड इसके नीचे आई नीड टू नहीं, कितने 4 फील्ड्स है, राइट। सो ईमेल का तो होगा, पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको कट करके जरा ऊपर डालता हूँ नेम के लिए। यहाँ पे आई से नेम, यहाँ पे ऑथर होगा, नेम की जगह पे ऑथर ही लिख देते, चलो ऑथर। ओके, एंड ये टाइप होगा टेक्स्ट। तो ये मेरा ऑथर फील्ड हो गया। ओके, देन कम टू दिस, ये वाला निकाल देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखते। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा है, टाइप ईमेल है, ठीक है। सो ये दो हो गए ऑथर और ईमेल का। तीसरा है डिस्क्रिप्शन और रेटिंग। अभी रेटिंग जो है वो सिलेक्ट टैग होगा, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट टैग भी लेता हूँ, सिलेक्ट, कॉपी एंड इसको पहले तो ये कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ पेस्ट, एंड इसके अंदर कॉपी एंड ये इनपुट को रिप्लेस कर देता हूँ सिलेक्ट से। ओके,
इसको डालते हैं रेटिंग नेम फॉर रेटिंग, और यहाँ पे आई एड आईडी एज रेटिंग। ओके, सो ये लेबल उसके साथ मैच है। ये हो गया हमारा रेटिंग, यहाँ पे डालते हैं रेटिंग। एंड यहाँ पे भी ऑप्शंस जो है ना हम लोग को, लेट्स से कि बहुत 5 होंगे, तो 5 बार नहीं डालना है। तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे एक एरे बना लो रेटिंग्स करके, इक्वल्स टू ऐड 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 रेटिंग्स ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड यही इसी को यहाँ पे लूप घुमा लेते हैं ऑप्शन टैग ऐड करके। सो आई डू ng for let rating of ratings। ओके, वैल्यू में वी विल राइट द रेटिंग नंबर जो भी होगा, तो ये बेसिकली नंबर ही होगा 1, 2, 3, 4, 5। एंड यहाँ पे आपको डिस्प्ले करने के लिए वी कैन यूज रेटिंग। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं स्टार्स। 1 के लिए 1 स्टार, 2 के लिए 2 स्टार्स वगैरह। ओके, तो ये हो गया रेटिंग। नाउ लास्ट वाला चीज बचा है, दैट इज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए किस यहीं पे होगा, फॉर्म टेक्स्ट 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 नहीं है। हाँ, फॉर्म कंट्रोल में होगा। हाँ, ये देखो टेक्स्ट एरिया। सो ये कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड दिस वन पेस्ट। ओके, टेक्स्ट एरिया हो गया। यहाँ पे आईडी डालते हैं, ये सॉरी मैंने गलत जगह पे डाल दी, लेबल ऊपर रखा, इसके नीचे डालते हैं, ये निकाल देते हैं। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे डाल देते हैं। सो दिस इज माय, ये फॉर्म चेक निकालना पड़ेगा, इट्स नॉट अ चेक बॉक्स। ओके, सबमिट हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी ये फॉर्म बेसिकली आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हम लोगों ने यूज नहीं किया। ओके, सो ये कंपोनेंट यूज करना है हम लोग को कहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल में, नॉट प्रोडक्ट डिटेल। ओके, रिव्यूज फॉर्म कंपोनेंट एचटीएमएल। हाँ, एक्चुअली वो दिख जाएगा क्योंकि हम लोग राउटिंग के थ्रू आ रहे हैं ना। तो एज यू कैन सी, जब हम लोग राउटिंग यूज करते हैं ना, तो हम लोग का ये सिलेक्टर का कुछ काम नहीं रहता। ओके, सो अगर ये नहीं भी डालोगे तो भी चल जाता है। ओके, अगर आपका राउटिंग के थ्रू आ रहा है ये पेज पे, और अगर रखना है तो रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, सो इफ यू गो टू रिव्यूज पेज, यू विल सी द फॉर्म हियर। ओके, देखो हमारा पूरा फॉर्म आ गया with all the values। Okay, values will be basically all the controls। Okay, by default 1 star selected because there is nothing to be। Okay, so your form is ready। Now we need to create a template driven form। Okay, but before doing that, मैं बोलूंगा आप पहले ये कर लो, फिर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जाते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो ये पहले कर लो, फॉर्म वगैरह बना लो, देन हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, सो just need to create a class for review, and then component में ये ऐड कर दो, एंड यहाँ पे ये फॉर्म बना देना। हो जाएगा तो बता देना।
हो गया? नहीं सर. ओके. Done. ओके, डन सबका? बाकी सबका भी हो गया फॉर्म ऐड कर? ओके. बाकी श्रेयस, प्रणति, ऋषिकेश, रवि, बालाजी, सागर. ओके, ठीक है. चलो तो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स डाइव इनटू आवर React, sorry, template driven form. Okay, how do you create a template driven form? So as I told you कि like template driven forms are totally created in templates. So यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोई form control नहीं बनाने वाले. Okay, so every control is going to be created in your template itself. Okay, but how do you create a template driven form? Okay, so for that we'll need मॉड्यूल कॉल्ड एज फॉर्म्स मॉड्यूल. ओके, फॉर्म्स मॉड्यूल हम लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा. ओके, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का एक झलक देखा है हमने प्रोडक्ट लिस्ट या प्रोडक्ट लिस्ट कंपोनेंट में. ओके, यहाँ पे वी हैव सीन द एनजी मॉडल. दिस एनजी मॉडल डायरेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ योर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म. ओके, और यू कैन से फॉर्म्स मॉड्यूल. तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल आपको टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स बनाने के लिए हेल्पफुल है. ओके, सो how do you add those modules? Okay, so जैसे है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट के टाइम देखा था कि हम लोगों ने एनजी मॉडल ऐड किया था डायरेक्टिव टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए, एंड देन हम लोग ने उसको एक वेरिएबल असाइन किया था सो दैट वो वेरिएबल इसके साथ बाइंड हो एंड उसमें वैल्यू हम लोग ऐड और रिमूव कर सकते. एंड दैट वाज आल्सो एन इनपुट टाइप टेक्स्ट. ओके, बट वहां पे हमारा फॉर्म नहीं था, जस्ट एक इनपुट कंट्रोल था. So, यहाँ पे भी हैव कंट्रोल्स, बट ये कंट्रोल सारे फॉर्म के अंदर है. राइट, सो जब आप इन कंट्रोल्स को लेते हो तो ये एंटायर फॉर्म के अंदर रैप होता है और सब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे बिकॉज हम लोग ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे उसको. ओके, सो हाउ डू यू ऐड द कंट्रोल्स? फिर आपका मॉडल है एनजी मॉडल. सो ये हमारा इनपुट है, इनपुट को ऐड कर लेते हैं एनजी मॉडल. ऑब्वियसली सॉरी, ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे अभी वो फील्ड चाहिए. तो फील्ड क्या है हमारा? ऑथर. ऑथर किसके अंदर है? रिव्यू फॉर्म के अंदर. सो लेट्स यूज रिव्यू फॉर्म डॉट ऑथर. तो आपका ऑथर जो फील्ड है रिव्यू फॉर्म के ऑब्जेक्ट के अंदर का, वो भी मैप हो गया हमारे ये इनपुट कंट्रोल से. ओके, सिमिलरली यू कैन मैप ऑल योर कंट्रोल्स विथ योर मॉडल लाइक दिस. ओके, ये हमारा सिलेक्ट के लिए जाएगा और यहाँ पे आएगा टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के लिए. ओके, सो हियर आई विल से ईमेल, यहाँ पे बोलते हैं रेटिंग और यहाँ पे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन.
तो हमारे सारे फील्ड्स आ गए थे, तो मैं मल्टी लाइन में लिख देता हूँ जस्ट फॉर ब्रीविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मॉडल्स बाइंड हो गए। ओके, लेट्स कम हियर एंड चेक कर लेते हैं, अभी एरर आ रहा है कुछ तो। ओके, एनजी मॉडल इज यूज्ड विद इन अ फॉर्म टैग। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। हम लोग ने पहले मॉडल ऐड किया था तभी कुछ एरर नहीं था, अभी भी एरर नहीं है इसके लिए। जब हम लोग प्रोडक्ट्स पेज पे जाते हैं, लिस्ट पेज पे, तो हम लोग ने जो प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया था ये वाला इनपुट, इसमें कभी हम लोग को एरर नहीं आया जब हम लोगों ने एनजी मॉडल ऐड किया। बट अभी मैंने यहाँ पे एनजी मॉडल ऐड किया तो मुझे एरर्स क्यों आ रहा है? बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं वो एक फॉर्म टैग के अंदर है। ओके, so when your ng model or template driven forms is used and it is inside a form tag, आपको एक चीज ऐड करना होता है, that is if it is used within a form tag, either the name attribute must be set or the form control must be defined as standalone in ng model options. Okay, अभी standalone बनाने का तो कुछ फायदा नहीं है, बट ऑप्शन हमारे पास दूसरा है which is name attribute. ओके, स्टैंड अलोन कभी बनाना है जब उस वो किसी फॉर्म के साथ बाइंड नहीं है। तो अभी हमारा कंट्रोल फॉर्म के साथ बाइंड है। ओके, तो स्टैंड अलोन के लिए आप ऐसे ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं जो उन्होंने एग्जांपल भी दिए थे। एंड हम लोग को पहले ऑप्शन से जाना है नेम एट्रीब्यूट। ये नेम एट्रीब्यूट आपके लिए कंपल्सरी। ओके, बिकॉज ये नेम एट्रीब्यूट ही जो है जिसके थ्रू आपका कंट्रोल क्रिएट होगा। भले ही हम लोग ने यहाँ पे रिव्यू फॉर्म डॉट ऑथर बोला है, बट जब ये फॉर्म के अंदर होता है ना, तो फॉर्म के अंदर वो जो फील्ड्स यूज करेगा वो फील्ड्स बेसिकली ये नेम एट्रीब्यूट से मैच होंगे। मतलब जो कंट्रोल क्रिएट होगा फॉर्म कंट्रोल, ओके, उसका वेरिएबल का नाम होगा नेम एट्रीब्यूट में जो हम लोग डालेंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग को ये नेम एट्रीब्यूट चाहिए होता है। सो हर एक के लिए हम लोग को नेम कंपल्सरी है तो डालना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन में लिख देता हूँ नेम इक्वल्स टू, नेम में भी ऑथर ही डाल देता हूँ। ओके, डजेंट मैटर आपको जो डालोगे। okay? वो बेसिकली आपके रिव्यू फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे I'll ऐड ईमेल, यहाँ पे रेटिंग, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये डाल दोगे आपके सारे एरर चले जाएंगे। दैट मीन्स हमारा फॉर्म बराबर है, सब कुछ बराबर चल रहा है। ओके, अगर मैं वैल्यूज वगैरह एंटर करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो एक्चुअली वो फॉर्म मॉडल में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं चेक करना है। तो आप यहाँ पे ये जो मॉडल है हम लोग ने रिव्यू फॉर्म बनाया है, ओके, ये तो ऑब्जेक्ट ही है और इसी के फील्ड्स हम लोग ने मैप किए यहाँ पे, ऑथर, ईमेल, रेटिंग और डिस्क्रिप्शन सब। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट मतलब बेसिकली यहाँ पे रिव्यू फॉर्म डालता हूँ, बट अगर रिव्यू फॉर्म डालूंगा ये ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आएगा। ओके, सो टू प्रिंट द वैल्यू यूज जेसन पाइप। जेसन पाइप से वो स्ट्रिंगीफाई हो जाएगा। ओके, एंड फॉर नाउ यू सी इट इज अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम लोग ने रिव्यू फॉर्म में देखेंगे तो न्यू रिव्यू क्रिएट किया है और इसमें सब नल वैल्यूज है, मतलब बेसिकली वैल्यूज ही नहीं है। ओके, तो ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है फिलहाल। ओके, तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट होने की वजह से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। बट आप अगर जाओ अभी ऑथर फील्ड में और ऐड करने का ट्राई करो, जैसे ऐड करोगे आपका फील्ड ऐड हो जाता है। ओके, दैट मीन्स हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग जो है वो मैच हो रहा है यहाँ पे, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऑथर फील्ड जो रिव्यू फॉर्म के अंदर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले भी किया है उसको, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो दैट मीन्स जो भी हम लोग वैल्यूज डाल रहे हैं वो मैप हो रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, यहाँ पे भी डालूंगा ईमेल आईडी, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे रेटिंग भी डालूंगा, आप अभी रेटिंग देखोगे ब्लैंक है। ब्लैंक किसके लिए, पहले इसने मुझे 1 स्टार दिखाया था। 1 स्टार क्यों दिखाया था, क्योंकि मेरा मॉडल तभी एनजी मॉडल तभी यहाँ पे अटैच्ड नहीं था मेरे सिलेक्ट को, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो दिखाता। बट जब मैंने इसको अटैच किया रेटिंग, अभी रेटिंग नल है, तो रेटिंग किसके साथ मैच होगा, इसीलिए वो आपको फर्स्ट यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, वो अपना HTML इनपुट की वजह से वो सिलेक्टेड दिख रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू इज नॉट सिलेक्टेड। ओके, ना यहाँ पे आके सिलेक्ट करो, आपको देखो रेटिंग 3 मिलेगा। 3 स्टार्स नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा, बिकॉज हमारा वैल्यू इसके अंदर कहाँ पे है, वैल्यू सिर्फ रेटिंग है, 3 स्टार्स 4 स्टार्स ऐसे नहीं, इसलिए वो नंबर ही दिख रहा है। ओके, डिस्क्रिप्शन भी ऐड करो और सम, आपका डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो देख सकते हो आपका एंटायर ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है विथ ऑल द फील्ड्स। ओके, so that's how you can bind your
model or class to your form by using ng model. समझा? बट ये फील्ड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नेम फील्ड. समझा? हाउ टू बाइंड योर कंट्रोल्स. Yes. अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ टेम्पलेट में कर रहा हूँ. यहाँ पे कुछ भी फॉर्म के रिलेटेड चीजें की नहीं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया जो ऑब्जेक्ट यूज करे यहाँ पे. ओके, देखो बाइंड करो अभी, फिर हम लोग इसके आगे का देख लेते हैं इसके बाद. समझा ना सब लोग को? ओके ग्रेट. कर लो, ये होने के बाद बता देना. Cool. Done. डन. डन एवरीवन. हो गया सबका? कोई बाकी है या हो गया? डन. ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने फॉर्म के फील्ड्स को या कंट्रोल्स को हमारे मॉडल के साथ बाइंड तो कर लिया. नाउ बाइंड करने के बाद, नाउ लेट्स सी हाउ डू यू सबमिट अ फॉर्म. ओके, फॉर्म के फील्ड्स में हमारे वैल्यूज भी आ रहे हैं, हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोग को फॉर्म से वैल्यूज यहाँ पे मिलते भी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे जेसन मार के चेक भी किया. सो जस्ट कमेंट दिस आउट, डोंट नीड इट. ओके, बट हाउ डू यू सबमिट अ फॉर्म नाउ? ओके, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए ये बटन पे आप क्लिक वगैरह डाल के भी कर सकते हो, बट फॉर्म हैज अ इनबिल्ट इवेंट विच इज एनजी सबमिट. एनजी सबमिट इवेंट लेके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स से आई कॉल ऑन सबमिट. ओके, ऑन सबमिट फंक्शन कॉल करते हैं, जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, which will not return anything, so void. तो हमारा सबमिट फॉर्म आ गया. ना यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज के लिए से लेंगे. वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं, आपका जो रिव्यू फॉर्म है ना, वो रिव्यू फॉर्म ही एक्चुअली आपको वैल्यूज दे रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे बाउंड है. और यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था कि रिव्यू फॉर्म अगर जेसन मारते हैं यहाँ पे तो हम लोग को वैल्यूज मिल जाता है. सो यहाँ पे आके यू कैन जस्ट प्रिंट और डू कंसोल लॉग रिव्यू फॉर्म, आपको एंटायर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे. ओके, सो लेट्स चेक. रिफ्रेश हो गया. आई एंटर द वैल्यूज 3. सबमिट. देखो सबमिट किया, आपको एंटायर रिव्यू फॉर्म का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जहाँ पे ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, रेटिंग सब आ गए. ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन सबमिट अ फॉर्म. जस्ट यूज दिस ng submit. ओके, एंड कॉल अ फंक्शन, एंड फंक्शन में
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करो, आपको पूरा फॉर्म का वैल्यूज मिल जाएगा सबका। Okay? समझा हाउ टू सबमिट अ फॉर्म? यस। ट्राई करो। कूल। डन। डन हो गया सबका? ओके ग्रेट। सो चलो हम लोगों ने फॉर्म तो सबमिट कर लिया। ओके बट यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो मेरे लिए ऑथर नेम, ईमेल एंड रेटिंग तो कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन चलो नहीं भी डाल दिया तो भी चल जाएगा, बट ये तीनों चीजें मुझे कंपलसरी। तो मैं अगर इसमें से एक भी फील्ड नहीं डालता तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। बट अगर आप सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे ईमेल ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, मतलब ये तीनों में से मुझे वैलिडेशन ऐड करने हैं यहाँ पे, इन तीनों पे वैलिडेशन ऐड करना है। और डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके सो हाउ डू यू ऐड अ वैलिडेशन? ओके तो वैलिडेशन ऐड करने के लिए ओके हम लोग को पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फॉर्म कंट्रोल्स है, ओके ये जो फॉर्म कंट्रोल्स है ना यहाँ पे, ये हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? ओके फॉर्म कंट्रोल्स एक्सेस कैसे करेंगे वो तो बाद में देख लेते, चलो पहले हम लोग ये देख लेते कि हमारा जो कंट्रोल होता है ना, फॉर्म कंट्रोल, ओके वो बेसिकली ना कुछ स्टेट्स में से जाता है ना। वो स्टेट्स क्या है? ओके वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पे फॉर्म में। ओके सो यहाँ पे मैं ना एक हमारा ये क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आई शो यू क्या क्या स्टेट्स होते हैं फॉर्म के। Okay, so here I'll create a table. Okay, so let's say कि 3 columns and 4 1। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो मेरा टेबल है। ओके हम कंट्रोल्स के, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ स्टेट। ओके स्टेट क्या होगा फॉर्म का, कंट्रोल का। ओके और क्या क्लास ऐड होगा? ओके यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू यूज अ फॉर्म, ओके और फॉर्म के जो स्टेट्स होंगे वहां पे एक क्लास ऐड होता है अगर आपका स्टेट ट्रू है तो। ओके और अगर आपका स्टेट क्लास दूसरा क्लास होता है अगर आपका स्टेट फॉल्स है। ओके सभी ये क्या स्टेट होते हैं और क्या क्लास ऐड होता है अगर ये स्टेट ट्रू होगा फॉल्स होगा तो? ओके सो फर्स्ट की फर्स्ट स्टेट क्या होता है? सो फर्स्ट स्टेट है कंट्रोल, कंट्रोल इज विजिटेड। कंट्रोल विजिटेड मतलब क्या कि आपने ये कंट्रोल को क्लिक किया और बाहर आ गए, दिस इज कॉल्ड एज विजिटेड। अंदर क्लिक किया बाहर आ गए, दिस इज विजिटेड। ओके सो जब आपका कंट्रोल विजिट होता है ओके तो उस टाइम पे एक क्लास ऐड होता है ng-touched। ng-touched क्लास ऐड होगा। अगर मेरा विजिट नहीं है, विजिटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्लास होता है ng untouched।
So two classes are there when you have a state as visited. तो अगर कंट्रोल visited है तो ng touched होगा, कंट्रोल अगर visited नहीं है तो ng untouched होगा. Okay, let's see the next state. The next state is controls value is changed. Okay, मतलब मैं यहाँ पे आया, इसमें गया, इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया. ओके, सो मैंने कंट्रोल का वैल्यू चेंज कर दिया. ओके, पहले तो कोई भी कंट्रोल का वैल्यू चेंज नहीं था, तो आपका कंट्रोल का वैल्यू चेंज नहीं है. अगर कंट्रोल का वैल्यू चेंज्ड है, सो देयर इज अ क्लास एडेड कॉल्ड एज ng-dirty. ओके, एंड अगर कंट्रोल का वैल्यू चेंज नहीं है, सो देयर इज अ क्लास कॉल्ड एज ng-pristine. So there are two classes on control value changed. One is ng-dirty when the value is changed, and the value is not changed, then the class is ng-pristine. Okay. Now let's see the third state. Third state is controls value is valid. Okay. So मैंने value तो change कर दिया, but value valid है क्या? अगर value valid है, so there is a class called as ng-valid which is added to your control. अगर invalid है, so it will be invalid, ng-invalid. Okay. So these are the 6 classes which will be attached to your control when your control's state is changed. Okay. So यहाँ पे अगर control visited है तो ng touched होगा, नहीं visit किया है तो ng untouched होगा. Value changed है तो ng dirty होगा, नहीं change किया है तो ng pristine होगा. Value valid है तो ng valid होगा, नहीं invalid है तो ng invalid होगा. Okay. इन सारे स्टेट में अगर आप देखोगे तो ये दो जो स्टेट्स है, विजिटेड एंड चेंज, ये आर इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब क्या, कि पहले तो अनटच्ड होगा, एक बार मैंने टच कर दिया तो फिर से अनटच नहीं हो सकता, राइट. सो एक बार आप एनजी अनटच से एनजी टच्ड में जाओगे तो एनजी टच से फिर से अनटच में नहीं जा सकते. ओके, सिमिलरली अगर वैल्यू चेंज करते हो, मैंने एक बार वैल्यू चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया, फिर से अनचेंज तो नहीं कर सकता, राइट. फिर से वैल्यू निकाल दो, फिर भी वो चेंज ही रहेगा, बिकॉज कुछ तो वैल्यू चेंज किया. पहले ब्लैंक था, फिर से डाल के फिर से ब्लैंक कर दो तो चेंज ही है. सो इस केस में भी आप एनजी प्रिस्टाइन से जब एनजी डर्टी में जाते हो तो एनजी डर्टी से फिर से एनजी प्रिस्टाइन में नहीं आ सकते. ओके, वेरएस थर्ड स्टेट जो है वैलिड इनवैलिड, यहाँ पे आप जा सकते हो आगे पीछे. अगर वैल्यू वैलिड है तो एनजी वैलिड है, इनवैलिड है तो इनवैलिड है, फिर से वैलिड कर दे तो वैलिड, फिर से इनवैलिड हो गया तो इनवैलिड. सो दीज आर लाइक रिवर्सिबल. तो इनवैलिड से वैलिड में जा सकते हैं, वैलिड से इनवैलिड में आ सकते हैं. बट ये दो स्टेट में once you go from untouched to touched, you cannot go back. Once you go from pristine to dirty, you cannot go back. Okay, so these are the states of your every control in form. Okay, ये जो सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, इनमें ये 3 स्टेट्स होते हैं, और ये 3 स्टेट्स के बेसिस पे ये 6 क्लासेस ऐड और रिमूव होते रहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी दिस इन प्रैक्टिकल. ओके, अभी प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे, मैंने अभी तक कुछ वैलिडेशन ऐड नहीं किया, मुझे ये 3 रिक्वायर्ड चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे हमारा जो HTML फॉर्म होता है ना, यहीं पे आई कैन ऐड रिक्वायर्ड फील्ड. यहीं पे आप रिक्वायर्ड ऐड कर सकते हो. जस्ट ऐड रिक्वायर्ड, मुझे ऑथर रिक्वायर्ड चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड चाहिए और रेटिंग रिक्वायर्ड चाहिए. तो मैंने तीनों को रिक्वायर्ड डाल दिया, हमारे डिस्क्रिप्शन को रिक्वायर्ड नहीं डालता, सो दैट मेरा वैलिडेशन यहाँ पे लगे. ओके, सो लेट्स गो एंड रिफ्रेश योर पेज. अभी मैं ऑथर फील्ड को इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि इसके क्लासेस क्या है. ओके, अगर आप चेक करोगे ऑथर फील्ड में हमारे पास एनजी अनटच्ड है, देखो, बिकॉज मैंने टच नहीं किया. एनजी प्रिस्टाइन है बिकॉज वैल्यू चेंज नहीं किया. एनजी इनवैलिड है बिकॉज वो रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ लेट्स गो एंड टच दिस. मैं इसको क्लिक करके बाहर आता हूँ, देखो तुरंत सारे वैल्यूज चेंज हो गए. एनजी प्रिस्टाइन है क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, बट मैंने टच करके बाहर आ गया ना, तो आपका एनजी टच्ड हो गया. अभी ये फिर से अनटच नहीं हो सकता कभी. ओके, एनजी इनवैलिड है बिकॉज मेरा वैल्यू तो इनवैलिड है, रिक्वायर्ड है ना. ओके, तो इनवैलिड है. ओके, सो ये स्टेट हमारा चेंज हो गया अनटच से टच. ओके, अभी फिर से अनटच नहीं हो सकता. नाउ लेट्स चेंज प्रिस्टाइन. लेट्स गो टच एंड मैं वैल्यू एंटर करता हूँ. जैसे वैल्यू एंटर कर दिया, आपके फिर से सारे क्लासेस चेंज हो गए. आप यहाँ पे देख सकते हो एनजी प्रिस्टाइन से एनजी डर्टी हो गया. ओके, एनजी डर्टी हो गया अभी, और एनजी इनवैलिड से वैलिड हो गया बिकॉज वो वैलिड वैल्यू वैलिड है, रिक्वायर्ड था ना, तो वैलिड हो गया.
मैंने वैल्यू डाल दिया तो, ओके। बट फ्रॉम प्रिस्टाइन टू डर्टी, इट हैज बिकम फ्रॉम प्रिस्टाइन टू डर्टी। अभी मैं वैल्यू रिमूव भी कर दूंगा तो वो डर्टी ही रहेगा, बिकॉज मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। यू कैन सी एनजी टच तो एनजी टच ही है, एनजी डर्टी ही रहेगा, एनजी प्रिस्टाइन फिर से नहीं हो सकता। हाँ, बट एनजी इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि अभी रिक्वायर्ड है, मैंने वैल्यू रिमूव कर दिया, इट हैज बिकम इनवैलिड। वैल्यू डाल दूंगा, इट विल बिकम वैलिड, ओके। सो दैट्स हाउ योर क्लासेस आर एडेड एंड रिमूव्ड, ओके। अब इसका फायदा क्या है, ये क्यों किया, ये इसके लिए क्योंकि इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, ओके। ये इन क्लासेस के बेसिस पे आप डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, ओके। कैसे, देख लेते हैं। चलो, मैं यहाँ पे रिव्यूज कंपोनेंट और HTML है, यहाँ पे आई गो टू SCSS। यहाँ पे अभी मुझे लेट्स से कि ऐड करना है, इनवैलिड के लिए मुझे ऐड करना है रेड बॉर्डर, और वैलिड के लिए ग्रीन बॉर्डर ऐड करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, आई ऐड डॉट ng इनवैलिड। अगर इनवैलिड है तो आई से बॉर्डर लेफ्ट में ऐड करता हूँ, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल और लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, ओके। अगर वैलिड है तो आई ऐड ng वैलिड 5 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन, ठीक है, ऐड कर दिया। अभी चेक करते हैं जाके क्या होता है। यू विल सी, आपको सारे ये देखो डिस्क्रिप्शन पे ग्रीन है। अभी ये एक्चुअली फॉर्म पे भी लगा है, क्योंकि जो फॉर्म है ना वो एंटायर फॉर्म ग्रुप है, और फॉर्म पे भी आपके ये क्लासेस ऐड होते हैं। अभी एंटायर फॉर्म है ना, ये चारों कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर चारों कंट्रोल वैलिड होंगे तो ही ये वैलिड होगा फॉर्म, चारों कंट्रोल में से एक भी इनवैलिड रहेगा तो ये इनवैलिड रहेगा, ओके। और इसमें भी वो अनटच्ड और प्रिस्टाइन होता ही है, तो एक भी कंट्रोल अगर टच करके बाहर आ गए तो टच्ड हो जाएगा, वो डर्टी कर दिया तो, एक भी कंट्रोल डर्टी कर दिया तो ये फॉर्म आपका डर्टी हो जाएगा, ओके। सो फॉर्म का स्टेट एंटायर चारों फॉर्म के कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ओके। सो हम लोग को ये फॉर्म को नहीं चाहिए, फॉर्म को ये रेड लाइन नहीं चाहिए, सो आई विल यूज नॉट ऑफ फॉर्म, नॉट फॉर्म। तो फॉर्म टैग को छोड़ के जहां कहाँ पे भी हमारा इनवैलिड या वैलिड होगा वहां पे ये स्टाइल लगेगा। सो लेट्स गो एंड चेक। फॉर्म टैग का चला गया, ओके। आप यहाँ पे इनपुट टैग पे देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट है, इसका स्टाइलिंग है, देखो, ओके, नॉट ऑफ फॉर्म। अभी देख सकते हो हम लोग को सब पहले ही पता चला है कि ये 3 रिक्वायर्ड है, तो तीनों का रेड आ रहा है और ये ग्रीन है, ओके। बट आपको स्टार्टिंग में ही वो वैलिडेशन दे रहा है, एरर दे रहा है, यार स्टार्टिंग में ही बता रहा है ये आपका रिक्वायर्ड है और ये आपका ग्रीन, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, वैलिड है, ये इनवैलिड है। एक्चुअली हम लोग जब वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद हम लोग को पता होना चाहिए कि ये इनवैलिड है या वैलिड है। स्टार्टिंग में ही क्यों वैलिड इनवैलिड बता दो, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते, कौन सा इसमें से क्लास यूज कर सकते, सो दैट हम लोग जब मैं वैल्यू एंटर करूंगा तभी मेरे को पता चले कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है, या फिर तभी ये क्लास अप्लाई हो या फिर स्टाइल अप्लाई। इसमें से ऐसा कौन सा क्लास यूज करूं सो दैट एनजी मैं डर्टी, यहाँ पे, यस, एनजी डर्टी। एनजी डर्टी, करेक्ट। इफ यू यूज एनजी डर्टी, डर्टी कब मैं जब वैल्यू पर विजिट करके भी मैं अगर एनजी टच करूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पे विजिट करके बाहर गया तो तुरंत यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे एनजी डॉट एनजी टच करता हूँ सिर्फ, सॉरी, टच एनजी हाइफन टच, और यहाँ पे भी एनजी हाइफन टच दोनों डाल दिए। अभी यहाँ पे देखोगे तो किसी पे भी अभी वैलिडेशन अपना स्टाइल नहीं है, बट मैंने इसको विजिट कर दिया तो विजिट करने के बाद ही मेरे को बता देगा, ओके, कि ये इनवैलिड है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, बट अगर आपको वैल्यू एंटर करने के बाद अगर पता करना है कि वैलिड है इनवैलिड है तो यूज एनजी डर्टी, ओके। सो एनजी डर्टी से क्या होगा कि जब वैल्यू एंटर करोगे तभी वो बताएगा आपको वैलिड है कि इनवैलिड है, मतलब स्टाइल लगेगा बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे आके विजिट करके जाओ, टच से अनटच्ड होगा तो भी आपको स्टाइल नहीं लगेगा। बट अगर यहाँ पे आओ नाउ एंटर वैल्यू, अभी देखो ग्रीन बोल रहा है, दैट मीन्स वैलिड है। बट अगर मैं निकाल दूंगा यहाँ से तो देखो रेड हो गया, ओके, बिकॉज इट इज डर्टी एंड इनवैलिड। डर्टी एंड इनवैलिड होने की वजह से आपको रेड दिख रहा है। अभी आप वैल्यू डालो, अभी वो डर्टी और वैलिड है, तो डर्टी और वैलिड होने की वजह से आपको ग्रीन दे रहा है, ओके। सो यू कैन सी दैट कितना इजी है आपको स्टाइलिंग अप्लाई करना, बट जस्ट बाय यूजिंग क्लासेस। और क्लासेस आपको एंगुलर ही प्रोवाइड करके दे रहा है वो फॉर्म कंट्रोल पे, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया।
यहाँ पे सिर्फ वो वैलिडेटर के लिए एक रिक्वायर्ड ऐड कर दिया और यहाँ पे क्लासेस के बेसिस पे स्टाइल अप्लाई की बस। बाकी ये पूरा हम लोग का ये जो चीज है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। समझा हाउ टू, इसमें बेसिकली व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ योर फॉर्म कंट्रोल एंड हाउ टू यूज देम फॉर स्टाइलिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सब लोग को समझा Yes. है? ओके। Yes. Yes. व्हाट अबाउट अदर्स लाइक श्रेयस, प्रणोति, ऋषिकेश, सोनाली, बालाजी? ओके, आप लोग भी कभी बोला करो, हमेशा चुप रहते हो। ठीक है, ऐड करो देखो। तो ये 3 फाइल को रिक्वायर्ड ऐड कर देना और ये स्टाइल ऐड कर देना। Done. डन, सबका हो गया? ओके, तो अगर सबका हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने वैलिड इनवैलिड तो ऐड कर दिया। ओके, बट अगर कभी आपको सपोज ये वैलिड है इनवैलिड है, ओके, अभी एक कंट्रोल के ऊपर आपके मल्टीपल वैलिडेशंस भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल तो हमारे पास एक ही वैलिडेशन है रिक्वायर्ड का, बट अगर एक कंट्रोल के ऊपर मल्टीपल वैलिडेशन होंगे, जैसे कि ईमेल देखोगे तो ईमेल में रिक्वायर्ड भी है, और ईमेल में अगर कुछ गलत ईमेल डालते हो, ईमेल का फॉर्मेट अगर गलत है, तब का दूसरा वैलिडेशन चलेगा, लाइक ईमेल इज इनवैलिड। तो यू कैन हैव मल्टीपल वैलिडेशंस और वन वन कंट्रोल। ओके, बट ऐसे ऐसे समय पे अगर आपको क्या इनवैलिड है, क्या आपका वैलिडेशन एरर है, वो अगर आपको दिखाना है, ओके, तो हाउ कैन यू शो इट? ओके, सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टाइलिंग के लिए यहाँ से एक अलर्ट यूज करता हूँ। ओके, आई यूज वन अलर्ट, ये वाला अलर्ट डाल देते हैं उसके नीचे ही। सो आई यूज दिस डेंजर एंड ये, okay, इसको मैं डाल देता हूँ, कंपोनेंट में आते हैं, इसके नीचे ही डाल देता हूँ, इनपुट के नीचे। I'll add this div, अच्छा, वो 2 स्पेसेस का है। तो ये मेरा अलर्ट है। अभी ये अलर्ट में मैं लिख देता हूँ कि फिलहाल तो अभी लिख देते हैं कि नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। बट अगर अभी डायरेक्टली डालोगे तो आपको अलर्ट अभी डायरेक्ट दिखेगा। ओके, ये अभी हम लोग को कब दिखना चाहिए? जैसे हम लोगों ने स्टाइल में ऐड किया ना कि इनवैलिड है और डर्टी है तो ही दिखेगा। ओके, तो ये अगर ये डिव हम लोग को तभी दिखना चाहिए जब इनवैलिड है और डर्टी भी है, तभी ये फिर दिखना चाहिए, नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, अभी ये हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हम लोग को क्लासेस मिल रहे, तो क्लासेस के बेसिस पे कर रहे थे हम लोग। ओके, बट हाउ डू यू हैंडल दिस थिंग हियर? ओके, यहाँ पे NG. यस, NGF. एनजी इफ यूज करना पड़ेगा, बट वो हम लोग को स्टेटस कैसे पता चलेगा उस कंट्रोल का? एनजीएफ में हम लोग डालेंगे क्या, वो स्टेटस तो बताना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक टेम्पलेट वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। ओके, टेम्पलेट वेरिएबल, लेट्स से मैं ऐड करता हूँ, ऑथर नाम देता हूँ टेम्पलेट वेरिएबल को। दिस इज टेम्पलेट वेरिएबल बिकॉज टेम्पलेट को असाइन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू। अब इसको असाइन क्या करेंगे? वी विल असाइन एनजी मॉडल। ओके, ये एनजी मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है, ये मैं ऑथर टेम्पलेट वेरिएबल को असाइन करता हूँ। तो जैसे असाइन कर दिया, ये ऑथर जो हमारा है ना, इसको मैं यहाँ पे लेट्स से प्रिंट करता हूँ अभी, जेसन ऑब्जेक्ट, रिफ्रेश। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, एक मिनट, ऑथर
डॉट लेट से वैलिड डाल देता हूँ। okay, इसमें फील्ड्स होते हैं, ऑथर डॉट वैलिड इनवैलिड। देखो ऑथर डॉट वैलिड लिखोगे तो आपको यहाँ पे फॉल्स लिख के आएगा। ओके, बिकॉज ये जो ऑथर है ना, ये एनजी मॉडल का ऑब्जेक्ट है, और एनजी मॉडल में उसका स्टेट होता है कंट्रोल का। वैलिड है, आपका डर्टी है, आपका क्या बोलते हैं प्रिस्टाइन है, टच्ड है, अनटच्ड है, क्या है, सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, आप सारे यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वैलिड के लिए, और हम लोग को चेक करना था डर्टी के लिए, राइट। ये भी चेक कर लेता हूँ टच्ड के लिए। सारे रहते हैं यहाँ पे, छह के छह मिलेंगे। इनवैलिड, वैलिड, डर्टी, प्रिस्टाइन, टच, अनटच, सारे मिलेंगे। एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा। वैलिड के इसमें भी ये हो। रिफ्रेश, कैन सी तीनों फॉल्स है। टच करता हूँ, आपका टच ट्रू हो गया। मैंने यहाँ पे एंटर किया, आपका डर्टी ट्रू हो गया और वैलिड भी ट्रू हो गया। निकाल दिया, आपका वैलिड फॉल्स हो गया, डर्टी अभी भी ट्रू। सो यूजिंग दिस ऑथर डॉट वैलिड, ऑथर डॉट डर्टी, हम लोग ये इस इफ कंडीशन में डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं। सो इफ आई पुट एनजी इफ हियर, और यहाँ पे डालता हूँ ऑथर डॉट डर्टी एंड ऑथर डॉट वैलिड, ओके, इनवैलिड सॉरी, ऑथर डॉट डर्टी है और ऑथर डॉट इनवैलिड है, तो ही मैं इस फील्ड को दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा। सो लेट्स गो एंड चेक, रिफ्रेश। अभी देखो यहाँ पे मैंने करता हूँ तो अभी नहीं दिख रहा है, बट अभी मैं डालूंगा। अभी देखो मेरा वैलिड है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट जैसे इनवैलिड हो जाएगा आपका नेम इज रिक्वायर्ड आ जाएगा। फिर से वैलिड कर दो, निकल जाएगा। ओके, इनवैलिड कर दो, आ जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन शो द वैलिडिटी मैसेज। ओके, यहाँ पे जो भी आपको एरर मैसेज दिखाना है, वैलिडेशन एरर मैसेज, तो यहाँ पे दिखा सकते यूजिंग दिस। अंडरस्टूड एवरीवन how we can show it in HTML? समझा सब लोग को? ओके, कूल। लिख लो, इन तीनों के लिए भी ऐड कर देना। मैं भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ईमेल के लिए। ईमेल इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे डालते हैं ईमेल। आप लोग भी ऐड करते जाओ। रिएक्टिव फॉर्म्स में हम लोग देखेंगे जब हम लोग मल्टीपल वैलिडेशंस कर सकते तभी कैसे हैंडल करते हैं उसको।
हो गया? डन? नहीं सर, रुको। ओके, डन? हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है। ओके, सो द लास्ट स्टेप रिमेनिंग इन एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। वैलिडेटर वगैरह हम लोग करेंगे, बट वो रिएक्टिव फॉर्म में ही ज्यादा करेंगे, बिकॉज वहां पे ही ज्यादा करके यूज होगा। सो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो इफ आई सबमिट, मेरा फॉर्म अभी भी सबमिट हो रहा है विदाउट एनी वैल्यूज। चलो, हमने वैलिडेशन विजुअली तो ऐड कर दिया, बट फंक्शनैलिटी वाइज अभी भी मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। ओके, सो हाउ डू आई प्रिवेंट इट? तो प्रिवेंट करने के लिए पहले तो एक तो आप एक चीज चेक कर सकते हो कि हर एक कंट्रोल वैलिड है कि नहीं, तभी जाके सबमिट करो। अदरवाइज आपके पास फॉर्म पे तो होता ही है। आप यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही देखा कि फॉर्म पे भी ये क्लासेस लगते हैं, तो फॉर्म पे भी हमारा स्टेटस तो होगा कुछ ना कुछ तो। ओके, हाउ डू आई अचीव दैट फॉर्म स्टेटस? वो मिलेगा कैसे मुझे? तो उसके लिए यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट वेरिएबल ऑन फॉर्म। यू कैन राइट हैश, लेट्स सी रिव्यू फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू, रिव्यू फॉर्म नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी रिव्यू फॉर्म है, तो आर एफ लिखता हूँ। ओके, आर एफ इक्वल्स टू, यू कैन राइट एनजी फॉर्म। ओके, जैसे एनजी मॉडल होता है वैसे ही आपका फॉर्म्स मॉडल आपको एनजी फॉर्म प्रोवाइड करता है एंटायर फॉर्म का मॉडल के लिए, फिर उसका ऑब्जेक्ट के लिए। सो यू कैन यूज आर एफ हैश आर एफ इक्वल्स टू एनजी फॉर्म। ये एनजी फॉर्म में आपको स्टेटस मिलेगा। ओके, यहाँ पे यू कैन चेक, अगर इसको, सॉरी एनजी फॉर्म नहीं, आर एफ में मिलेगा, आर एफ को असाइन किया ना, तो आर एफ और जेसन डालोगे तो आपको एरर तो थ्रो करेगा, बिकॉज ये सर्कुलर डिपेंड स्ट्रक्चर है जेसन का। तो इसमें ना मैं डायरेक्ट चेक करता हूँ वैलिड है कि इनवैलिड है, वो चेक कर लेता हूँ। यू कैन सी योर फॉर्म इज वैलिड, योर फॉर्म इज इनवैलिड बिकॉज फॉल्स है। यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, फॉर्म इज स्टिल इनवैलिड। यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, फॉर्म इज स्टिल इनवैलिड। रेटिंग में डालूंगा, फॉर्म आपका वैलिड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तीनों रिक्वायर्ड है, तो आपका फॉर्म वैलिड हो गया। एक भी निकाल दूंगा, फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा फिर से। ओके, सो ये वैलिड और इनवैलिड से हम लोग को पता चलता है कि फॉर्म वैलिड है कि इनवैलिड है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये वाला यूज करके हम लोग फॉर्म सबमिशन का हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ऐड कर दो इफ आर एफ डॉट वैलिड एंड सबमिट। तो अगर ये पता है हम लोग का एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर यहाँ पे ट्रू है तो ही आगे का एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे फॉल्स है तो आगे एग्जीक्यूट भी नहीं करता। ओके, सो अगर यहाँ पे वैलिड है तो ही ऑन सबमिट होगा, वैलिड नहीं है तो ऑन सबमिट नहीं होता। तो अब यहाँ पे चेक करो, अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा आपको वैल्यू। ओके, बिकॉज फॉर्म इज इनवैलिड। वैल्यूज डालते जाओ यहाँ पे,
डाल दिए, डिस्क्रिप्शन नहीं डाला, फॉर्म सबमिट करो, आपका सबमिट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, बट आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो डाल दो, सबमिट कर दो, आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन सबमिट अ फॉर्म। ओके, हाँ, अगर आपको ये सबमिट बटन भी डिसेबल भी करना है तो डिसेबल भी कर सकते हो, बिकॉज ये जो RF होता है इसमें ना आपको ये जो वैलिड इनवैलिड है, वो वैलिड इनवैलिड यहाँ पे भी लगा सकते हो टू ऐड अ डिसेबल्ड प्रॉपर्टी। डिसेबल्ड प्रॉपर्टी पे ट्रू फॉल्स कर दो तो डिसेबल ना लगना हो जाता है। यहाँ पे इफ राइट RF डॉट इनवैलिड, अगर इनवैलिड है तो ही डिसेबल करना है। ओके, इनवैलिड है तो ही डिसेबल करना है, इनवैलिड वैलिड है तो डिसेबल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे RF डॉट इनवैलिड लिखा मैंने। सो इफ यू रिफ्रेश यू विल सी सबमिट बटन इज डिसेबल्ड। ओके, बट कोई भी यहाँ पे जाके उसको एनेबल कर सकता है, इसीलिए ये ऊपर का कंडीशन है। ओके, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके किसी ने वो डिसेबल निकाल दिया तो वो एनेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं भी निकाल सकता हूँ, यहाँ पे जाके बटन पे डिसेबल्ड निकाल दो, आपका ये एनेबल हो जाएगा, सबमिट कर सकते। ओके, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, सो इसीलिए वो ऊपर का भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, बट विजुअली दिखाने के लिए हम लोग डिसेबल्ड कर सकते हैं और फिर वैल्यूज एंटर करते जाओ, जैसे वैल्यूज वैलिड हो जाएगा फॉर्म आपका, ये देखो एनेबल हो गया। ओके, फिर सबमिट कर दो, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अंडरस्टूड हाउ डू यू सबमिट? फंक्शनैलिटी वाइज आपने अभी फॉर्म को सबमिशन हैंडल कर दिया, समझा सबको? Yes. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअली टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म खत्म होता है। आप ये लिख लो, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में बाकी और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट ज्यादा कुछ हम लोग जो करेंगे दैट इज इन रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि हाउ डू यू क्रिएट रिएक्टिव फॉर्म्स, फिर उसमें वैलिडेशन कैसे हैंडल करते हैं। ओके, और मल्टीपल वैलिडेशंस कैसे हैंडल करते हैं, वैलिडेटर कस्टम वैलिडेटर कैसे क्रिएट करते हैं, दैट वी विल सी इन रिएक्टिव फॉर्म्स। फिलहाल ये लिख लो, देन विल स्टॉप। ये बटन के लिए मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ, तो बटन दिखेगा आपको। हो गया? डन क्या? That's good. Done. Okay. ठीक है, सो स्टॉप हियर। हाँ, बट एक चीज बिफोर स्टॉपिंग, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सब कुछ जो मैं कर रहा था ना, सब कुछ टेम्पलेट के अंदर ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कोई कोड नहीं है टेम्पलेट फॉर्म के रिलेटेड। ओके, सो दैट्स द रीजन इसको हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी क्रिएट अ फॉर्म इट विल बी ज्यादा करके क्लास में होगा। टेम्पलेट में ऑब्वियसली हम लोग को चेंजेस करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो दिखाना है, स्टाइलिंग बीलिंग और ये सब हैंडल करना है, तो टेम्पलेट में आएगा ही। बट कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल हमारा क्लास में क्रिएट होके जाएगा। ओके, सो दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुमारो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? चलो, देन विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट्स, क्वेश्चंस बिफोर स्टॉपिंग? टेम्पलेट